Okay, so let's continue. Verse number 2. अत्यार प्रयासस्य प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंघस्य लौल्यस्य षड्भिर्भक्ति विनश्यति. There are 6 items which can destroy our bhakti, and we have seen all above 6 defaults from which sadhaka may get disturbance in his devotional life. So let's continue from the Srila Prabhupada's purport. Modern warfare waged between capitalists and communists is due to their avoiding the advice of Srila Rupa Goswami regarding Atyahar. Modern capitalists accumulate more wealth than necessary, and the communists, envious of their prosperities, want to nationalize all wealth and property. So, again and again, actually, Srila Prabhupada is referring from the various commentaries of previous acharyas. So, again, he is kind of giving summary. So, he start with Atyahar, that what generally people does is that they accumulate more wealth than necessary. So it's called Atyahar. And what is the main reason is given here? What is the mentality behind Atyahar? What is the purpose? No. No, it's given here only, or what we have read. I will ask in the context based ask questions. Due to their what? Here is clear cut given. Where is our attention today? It's due to their enviousness. It's written, na? There is only. Yeah? Envies of their property, wants to nationalize all wealth and property. Yes? Understand? Why there is war is going on between capitalist and communists? Due to their envious nature. Why one is envious from another? Due to his, because he wants more wealth, so they become envious. Yeah. So I don't have and he has, so what is the me? Yeah, I also want. So they try to subdue their power or overcoming the power, and it's called conflicts, the war. Yeah, that's why main thing is what is going on is disturbance in the peace of the society. Yeah. Then further Srila Prabhupada says, unfortunately communists don't know how to solve the problem of wealth and its distribution. Yeah.
Communist peoples don't know how to distribute the wealth. They have the wealth. This is the scenario of current civilizations, that some people have a tremendous wealth, you know, unlimited wealth they have at the end, and they don't know how to use it properly, how to handle it properly. They only knows how to save and how to invest and how to expand their wealth. But what are they going to do with this wealth? They don't know how to distribute the wealth. Yeah. Try to understand the logic. What Srila Prabhupada is making the point. Yeah. Because one who has a wealth or anything and he don't know how to distribute it properly, what is the goal of this? Then what will happen? Imbalance in the society. Yeah. Imbalance only. Yeah. Consequently, when the wealth of the capitalist falls into the hands of communists, no solution results. Opposed to these two philosophies, the Krishna conscious ideology states that all wealth belong to Krishna. Now, Srila Prabhupada is gradually making the point that whether communist will have money or capitalist will have money, you know, there will be no proper use, because both are going to misuse only for their selfish agenda and for their selfish motives. So what is the point? Actually, wealth is belong to whom? Krishna. He is a husband of wealth, goddess of fortune, Lakshmi Pati. So main our Krishna conscious ideology is everything belong to Krishna. Yeah. Thus, unless all wealth comes under the administration of Krishna, there can be no solution to economic problem of mankind. Huh. Very strong point. That economy is disturbed. Why? Because there is no proper usage, you know, for Krishna consciousness purposes. Actually, yeah. Krishna consciousness refers to dharma only, that some activities from which one can know the ultimate truth and goal of life. Yeah. So if people we don't know about the common goal of life or ultimate goal of life, then what will happen? People will do what? Atyahar. And there will be always imbalance and chaos in the society. Yeah. One man will be enviousness from another man. Yeah. And there will be no peace, no prosperity, no equality, no humanity, only what? Chaos, enviousness,
and comparative mentality and cutthroat competitions which today is going on. Yeah, because they don't know knowledge about Krishna consciousness. That's why this is a problem actually. So how Krishna consciousness is a solution for the modern age or for the modern problems. Yeah, mainly Srila Prabhupada refers in his Bhaktivedanta Tatparya. Yeah, really, in Bhaktivedanta purpose, Srila Prabhupada's mainly one of the agenda or one of the goal is to show the world that Krishna consciousness is the lifestyle. Yeah, and we can have a Krishna consciousness principle for solving economical problem. Even economical problems can be solved, is going to solve by Krishna conscious principles. What to talk about personal and spiritual and professional problems and international problem. We talks about all kind of problems. Because Bhagavad Gita Krishna address all the problems, including economy. Yes. So this how we should think on. Yeah. Or we have to think. Otherwise, these are the points. Falls into faith and convictions. Yeah. Which can enhance our faith and elaborates our explanation on Krishna consciousness. That wow, what an amazing presentation. Yes, which is actually touches the people's heart and their intellect. That yes, it's fact. He or she is talking something very practical, which is applicable even today only. Today also. Yeah. Okay. Nothing can be solved by placing wealth in the hands of communists or the capitalists. We are seeing only. They will do only fighting and fighting. War and war. Which today also going on and on and on. Day by day war are increasing, you know. If $100 bills is lying on the street, some may pick it up and put it in his pocket. Yes, such a man is not honest. Another man may see the money and decide to let it remain there, thinking that he should not touch another's property. Although this second man does not steal the money for his own purpose, but he is unaware of its what proper use. The third man who sees the $100 bills may pick it up, find a man who lost it, and deliver to him. This man does not steal the money to spend for himself, nor does he neglect it and let it lie in the street. By making it, delivering it to the man who has lost it, this man is both honest and wise. Yeah. So, Srila Prabhupada is giving example of three kind of people, or say, there are persons who have a different with their different mentalities. Yes, that one
who steals it. That is like karmis. Yeah. Another guy is like Jnani, who is a Vairagi Baba, who means, he thinks that this is not myself, this is not for myself, I should not use it, I should avoid it. Better is I should avoid. And last fellow is like very wise and intellectual. He is a more or less like a bhakta, you know. He finds who is a proper guy, who is actually his real honor. Yes, to whom is belongs, and he delivers it, handles it. Yeah. So there are karmis, there are jnanis, and there are bhaktas. You know, karmis, karmis, they thinks about, they only thinks about themselves. Yeah. And jnanis, vairagi, they leaves it. Yeah. And bhaktas, they usage all things in Krishna's service. That is the main point. So who is the best one? Who did proper use? Third one, yeah. That's why Prabhupada is making that Krishna consciousness personalities can only use wealth properly. Yeah. Why to sit behind when there is space? Hare Krishna. Yeah. So, simply transferring wealth from the capitalists to communists cannot solve the problem of modern politics, for it has been demonstrated that when a communist gets money, he uses it for own sense gratification. Yeah, first guy. जब या जब ये स्वार्थी लोगों को धन मिलेगा तो वो क्या करेंगे? कहाँ गए? नहीं, जब स्वार्थी लोगों को धन मिलेगा तो वो लोग क्या करेंगे? या खुद की स्वार्थी इच्छा पूरी करेंगे. यस. The wealth of the world actually belongs to Krishna, and every living entity, man and animal, has to birthright to use God's property for his maintenance. Yeah. तो बोले सारी धन संपत्ति जो है कृष्ण पर आधारित है, कृष्णा से संबंधित है, और हाँ, सारे लोग पशु हो या मनुष्य दोनों का अधिकार है कि वो क्या कर सकते हैं? अपने भरण पोषण के लिए, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए वो लोग ये कृष्णा की संपत्ति का प्रयोग कर सकते हैं. When one takes more than his maintenance requires be he capitalist or communist, he is a thief, and as such is liable to be punished by the law of nature.
बोले कि जो व्यक्ति भी कैपिटलिस्ट हो, कम्युनिस्ट हो, समझ रहे आप, जो भी वादी हो, राष्ट्रवादी, देशवादी, ये सब वादी इस इजम्स ये सब की बात कर रहे हैं। तो बोले व्यक्ति जहां से भी उसका संबंध हो, पर यदि व्यक्ति अपने लिए, अपने भोग के लिए संपत्ति का प्रयोग करता है और कृष्ण की सेवा में नहीं लगाता, तो वो क्या है? चोर है। और वो व्यक्ति सजा का, दंड का पात्र है। कौन? जो अपनी संपत्ति कृष्ण की सेवा में नहीं लगाता। प्रकृति के द्वारा वो व्यक्ति क्या है? दंड के पात्र है। The wealth of the world should be used for the welfare of the all living beings, for that is the plan of mother nature. बोले जितनी भी धन संपत्ति है, जितनी भी प्राकृतिक नैसर्गिक संपत्ति है, वो सब जन कल्याण के लिए होनी चाहिए, ना कि अपने स्वार्थ पूर्ण योजनाओं को परिपूर्ण करने के लिए उसका प्रयोग होना चाहिए। समझ रहे हैं? Everyone has to right to live by utilizing the wealth of the Lord. भगवान की संपत्ति पर सबका समान रूप से क्या है? अधिकार है। When people learn the art of scientifically utilizing the Lord's property, they will no longer encroach upon one another's rights. जब सबको ये शिक्षा दी जाएगी कि कैसे भगवान की संपत्ति का प्रयोग होना चाहिए जन कल्याण के लिए, जब भी हम ये सब समझ जाएंगे, उसका प्रयोग करना, उसका पद्धति समझ जाएंगे, उसको प्रयोग करने की कला को समझ जाएंगे, तो क्या होगा? क्या होगा? सभी लोग एक दूसरे के अधिकारों को बलपूर्वक क्या छीनेंगे नहीं। यस। और सभी लोग क्या करेंगे? सुख शांति से रह पाएंगे। यस। और एक दूसरे के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करेंगे। Then an ideal society can be formed. इससे क्या होगा? एक आदर्श समाज का, उच्चतम विचारों वाले समाज का निर्माण होगा। The basic principles for such a spiritual society stated in the first mantra of Shri Ishopanishad. ईशावासम इदम सर्वम यत् किंचिया जगत्याम जगत केन त्यक्तेन भुंजिता मद ग्रथा कस्य स्वी धनम। यस, ये याद रखना जरूरी है। ईशावास्यम इदम सर्वम, सारी संपत्ति किसकी है? कृष्णा की है। ईशावास्यम इदम सर्वम। I have seen the board while Govardhan Parikrama. There is one plot near somewhere Jatipura. It's written in Gujarati only, Isavasyam, and then another fellow's name. Big title Isavasyam. Then why you are putting your own name? Isavasyam is enough. लगता है कि उसको पता नहीं कि ईशावास्यम का अर्थ क्या, तभी तो उसका अपना भी नाम लिख रहा है ईशावास्यम के नीचे। तो Srila Prabhupada's translation for Shloka 1 of Ishopanishad: everything animate or inanimate that is within the universe is controlled and owned by the Lord. ये संसार में जड़ पदार्थ है या चेतन पदार्थ है, जितने भी हैं, अचर चर चराचर जो भी वस्तुएं हैं, वो सब किसकी है? परम भगवान से संबंधित है। यस, वन शुड देयरफॉर एक्सेप्ट ओनली दोज थिंग्स नेसेसरी फॉर हिमसेल्फ। जितना जरूरत हो उतना क्या करना चाहिए? स्वीकार करना चाहिए। बाकी जो दूसरे का कोटा है, जो दूसरों के लिए बताया गया है या बनाया गया है,
उसका हमें क्या करना चाहिए? अस्वीकार करना चाहिए। और किस भावना से अस्वीकार करना चाहिए? जान के कि ये मुझसे, मेरी संपत्ति नहीं है, मेरा कोटा नहीं है। जैसे घर में 4 भाई हो, 8 रोटी बना है तो सबको 2-2 आता है ना। तो कोई 3 ले लेगा तो एक को कम आएगा ना, एक कोई 4 लेगा तो 2 भूखे रह जाएंगे। समझ रहे हैं? तो यही हमारी वैदिक पद्धति है, यही हमारी वैदिक शिक्षा है। क्यों ऐसा है? क्योंकि वास्तविकता में ये भौतिक जगत में सारी चीजें कैसी है? अपर्याप्त मात्रा में। कैसी है? ऐसे तो पर्याप्त ही है, हमें जितना जरूरत हो ऐसे एक 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 अंदाज में बोला जाए तो क्या है? पर्याप्त है। पर जब कोई व्यक्ति अपनी अपनी स्वेच्छा, मतलब अपनी कामेच्छाओं को पूरा करने में लग जाता है, जिसको उसका जो जरूरी नहीं है उससे भी ज्यादा उसको धन इकट्ठा करना है या वस्तु एकत्र करनी है, तो वो क्या करता है? दूसरों का जो अधिकार है, दूसरों की जो वस्तु है, उसमें क्या होता है? कटौती आता है। आता है कि नहीं आता है? यस। इससे क्या होता है? एक व्यक्ति को ज्यादा मिलता है, दूसरे व्यक्ति को कम मिलता है। और फिर क्या होता है? समाज में अराजकता का वातावरण होता है। यस, होता है कि नहीं होता है? और वो अराजकता से क्या होता है? फिर क्या होता है अराजकता से? लोग चोरी करते हैं, लोग डाका डालते हैं, चोरी करते हैं। यस। और अच्छी भावना लोगों के अंदर नहीं रहती। कृष्णा कॉन्शियस Krishna conscious devotees know very well that this material world is a design by the complete arrangement of the Lord to fulfill all the necessities of life for all living beings without their having to encroach upon the life or rights of one another। अभी जो समझा है वही बता रहे हैं कि भगवान ने सबको पूरा हो जाए इतना दिया है, पर लोग क्या करते हैं? कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करके रखते हैं। जो ये अत्याहार और संग्रहखोरी की जो मानसिकता है, उसके ऊपर क्या कर रहे हैं? प्रकाश डाल रहे हैं। या this complete arrangement affords the proper quota of wealth for everyone according to his real needs, and thus everyone may live peacefully according to the principle of plain living and high thinking। yes, तो बोले ये जो वास्तविकता में जो योजना है भगवान के द्वारा, वो सबको सादा जीवन और उच्च विचार के लिए प्रेरित करने के लिए क्या है? एक संयोगी, एक साधन है, जिससे लोग ये जन्म में तो ये जीवन में तो सुख शांति और समृद्धि पूर्वक भगवान का भजन कर सके, और ये जीवन के जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी क्या कर सके? क्या कर सके? यदि बीमा ना लो लेंगे
और ये इसका पालन करेंगे तो भी हो जाएगा। वास्तविकता में यही भगवान के द्वारा बीमा की योजना है, समझ रहे हैं आप? तो आर्टिफिशियली कुछ करने की आवश्यकता तो नहीं है यदि हम ये वैदिक सिद्धांतों का पालन करेंगे तो, समझ रहे हैं? अभी क्या समाज में नहीं हो रहा है तो अभी ये सब लोग लेते हैं, पर मुख्य बात क्या है? मुख्य बात क्या है? ये सिद्धांत, सादा जीवन उच्च विचार। अभी क्या हो रहा है? उच्च उच्च जीवन और सादे विचार और नो विचार, नो थिंकिंग, हाई लिविंग, हाई लिविंग सोसाइटी, they lives very high, very high, and their thoughts are very low, down to the earth, or sky is the limit, that is their lower thoughts. Yeah, so this is the principle. Yeah, whoever wants to become a Krishna conscious here, जिसको भी कृष्ण भावना भावित बनना है, वो व्यक्ति को अपने जीवन में ये सिद्धांत का प्रतिपादन करना पड़ेगा, या ये सिद्धांत समझना पड़ेगा आपकी अभी के जीवन में। हम नहीं बता रहे, क्योंकि ये 10,000 साल तक की पुस्तक है, ऐसा नहीं कि कुछ आउटडेटेड 70s 80s के लिए लिखा था। यस, और भक्त लोग इसको सार्थक करके जीवन जी के भी दिखा रहे कि नहीं दिखा रहे, बहुत सारे ऐसे उदाहरण है ना? नहीं, क्योंकि कभी कभी लोगों को लगता है भक्ति करना मतलब वो माला करना और बस आना और कुछ ऐसे चम्मच इधर उधर करके कुछ सेवा करके चले जाना, बस यही है हमारा भक्ति। लोगों को इससे परे कोई कुछ पता नहीं होता। यस, तो सबको बताना जरूरी है, पढ़ेंगे तो पता करेंगे ना, समझ रहे हैं? पढ़ेंगे नहीं तो कैसे पता करेंगे, समझे? इसलिए हमें ये आगे हमारे जीवन को इस तरीके से, हमारे जीवन को आगे इस प्रकार से जीवन की योजनाएं बनानी चाहिए कि हमारा जीवन पूर्ण हो सादा जीवन और उच्च विचार से। यस, उनको बोलिए कि इतना जो बड़ा आवाज रखा है तो क्या और भी Unfortunately, materialistics who have neither faith in the plan of God nor any aspiration for higher spiritual development misuse their God-given intelligence only to augment their material possessions. Yes, बड़े दुर्भाग्य की बात है, प्रभुपाद बताते हैं कि क्या दुर्भाग्य की बात है। सबसे पहली दुर्भाग्य की बात क्या है? वो लोग नास्तिक है, वो सबको भगवान, वो ईश्वर विहीन विचारधारा वाले हैं, वो नास्तिक है। यस, वो लोग अपने आध्यात्मिक नहीं, देखो देखिए अच्छे से, ऐसा नहीं हो सकता। इधर आगे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो भी व्यक्ति एस्पायर है, मतलब जो मैंने बताया वो आगे भक्ति में
प्रगति करने के लिए, यस, और अपने भौतिक जो जिम्मेदारियां हैं या जो भौतिक उसके पास संपदा है, उसको क्या करने के लिए, उसको नियमन करने के लिए व्यक्ति को ये दिशा में प्रगति करना पड़ेगा। इसलिए दे डिवाइस मैनी सिस्टम सच एज कैपिटलिज्म एंड मटेरियलिस्टिक कम्युनिज्म टू एडवांस देयर मटेरियल possessions. They are not interested in the law of God, yes, or in a higher goal, always anxious to fulfill their unlimited desire for sense gratification. They are conscious of their ability to exploit their fellow living beings, yes. तो बता रहे हैं कि भाई हमेशा जीव क्या करता है, अपने आप का क्या करता है, शोषण करता है, यस, सॉरी, अपने आप का में शोषण नहीं करता, पर क्या करता है, क्या करता है, वो दूसरों का शोषण करता है, जो उसके साथ कार्य करते हैं, और फिर क्या होता है, उससे उसका पूरा जीवन व्यर्थ चला जाता है। वो अपने धन को क्या करता है, अच्छी तरीके से उसका प्रयोग नहीं कर सकता, और ना दूसरे व्यक्तियों को समझा सकता है अच्छी तरीके से कि भाई क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उसको पता नहीं चल रहा है नो, यस। और वो लोग ना भगवत भावना में रुचि रखते हैं, ना जीवन के उच्च लक्ष्य में विश्वास है, ना रुचि है। उनको खाली भोगी करना है और कुछ नहीं करना है। उसको क्या है, एंजॉय द लाइफ। एक साधु के बड़े सब भक्त है। कौन सा साधु है जिनके सब भक्त हैं? आज के संसार में सबसे ज्यादा शिष्य बनाए उन्होंने, जिनके ये सब चेले हैं, आधे से ज्यादा दुनिया, बहुत प्रचार हुआ उनका, यू नो। कौन है? अब मैं बोला तो सही, आधे से ज्यादा लोग मतलब 80-90% लोग उनके ही भक्त है। हमारे इस्कॉन के तो बेचारे 0.1, 800 करोड़ में से 4 लाख इस्कॉन के या 5 लाख इस्कॉन के सदस्य, क्या आंकड़ा आया, 800 करोड़ में से 4 लाख है, 1% है तो कहाँ। हाँ बोलो। नहीं है, नहीं नहीं नहीं, सभी लोग एक के ज्यादा शिष्य है, बड़े नाम हुआ, बड़ी सदियों पहले हो गए। नाम मत बोलिए ऐसे। चारवाक मुनि के बहुत सारे शिष्य हो गए। चारवाक जी ने बड़ा प्रचार किया है ना। चारवाक जी के बड़े भक्त हुए लोग, है ना। क्या हुए? यावत जीवत सुखम जीवन ऋणन कित्वा घी पीवत, ये उनका सूत्र है। यावत जीवत सुखम जीवन, कि जब तक जीवो तब से क्या करो, सुख से जीवो। तो सुख से कैसे जिया जाए, धनी नहीं है तो ऋणन कित्वा, ऋण लो, उधार लो, पर क्या करो, घी पीवो। क्या करो? घी पीवो, है ना। अभी लोग और कुछ पीते हैं ऐसे, समझ रहे हैं। तो बोले उधार लो, तो ये ईएमआई, लोन, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सब किसके चेले हैं? चारवाक के, है ना। और चारवाक की फिलोसॉफी तो आर्ट्स वालों को पढ़ाई जाती है, फिलोसॉफी में आता है। बड़ी बड़ी गुजरात की यूनिवर्सिटी में चारवाक की फिलोसॉफी पढ़ाई जाती है, यस। हाँ, और महात्माओं के बारे में नहीं, इसके बारे में पढ़ा, जिसने अपने को गलत रास्ता दिखाया,
गलत सही रास्ता दिखाया। When human society gives up these elementary faults enumerated by Shilarup Goswami, Atyahar, Prajalpa, etc., all enmity will chase between man and animals, capitalists and communists and so forth. सब एक दूसरे के क्या बन जाएंगे? हाँ, विरोधी बन जाएंगे। यस, एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? विरोध में आ जाएंगे। यस, एक दूसरे के शत्रु बन जाएंगे। इन एडिशन और भी बात है, ऑल प्रॉब्लम्स इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल adjustment and instability will be solved. Yes. This pure consciousness is awakened by the proper spiritual education and practice offered scientifically by the Krishna consciousness movement. तो बोले हमने जो बताया ईशावाशम इदम सर्वम, यस, ऐसी जो शुद्ध भावना है, वो शुद्ध भावना कैसे हो, कब जागृत होगी? शिला प्रभुपाद क्या बता रहे हैं? बाय प्रॉपर स्पिरिचुअल एजुकेशन। तो ये एजुकेशन क्या है? ये भक्ति शास्त्री जैसे जो कोर्स है, जो वास्तविकता में बड़े गहराइयों से शिला प्रभुपाद अपने जो तात्पर्य बड़ी गहराई पूर्वक जो बात बतलाते हैं, उसका बहुत अच्छे से अध्ययन करके हम क्या कर सकते हैं? ये जो भगवत भावना है उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, आध्यात्मिक शिक्षण प्रशिक्षण दे सकते हैं, है ना? नहीं, और वैज्ञानिक प्रक्रिया है ये। यस, प्रैक्टिस ऑफर्ड साइंटिफिकली। अभी तो शिला प्रभुपाद साइंस का क्या डेफिनेशन देते हैं? बताइए, शिला प्रभुपाद साइंस का क्या डेफिनेशन देते हैं? को पता है शिला प्रभुपाद विज्ञान का क्या व्याख्या देते हैं? साइंस मीन्स व्हाट? शिला प्रभुपाद बतलाते हैं साइंस का व्याख्या कि टू नो द थिंग्स इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, इट्स कॉल्ड साइंस। वस्तुओं को अपने मूलभूत स्वरूप में जानना, उसको क्या बोलते हैं? साइंस, विज्ञान। ये शिला प्रभुपाद परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर जो बॉब कोहेन है उनके साथ जो कन्वर्जेशन करते हैं, उसमें पहला ही प्रश्न लेटर ऑन ब्रह्म तीर्थ प्रभु बॉब कोहेन, वो साइंस टीचर होते हैं, तो पहला ही प्रश्न पूछते हैं, व्हाट इज साइंस? एंड शिला प्रभुपाद रिप्लाइड in answer that to know the things in its original form, अपने मूलभूत स्वरूप में वस्तुओं को जानना, उसको क्या बोलते हैं? साइंस, विज्ञान। यस, तो साइंटिफिकली मतलब वैज्ञानिक रूप, वैज्ञानिक ढंग से कि भाई हम वास्तविकता में क्या है? स्पिरिचुअल साइंटिस्ट है या आध्यात्मिक वैज्ञानिक है। यस, जैसे ये विद्युत का विज्ञान क्या है, कैसे समझ सकते हैं? विद्युत इलेक्ट्रिसिटी का साइंस क्या है? अरे क्या बताया था पहले क्लास में? हाथ खड़ा करके बोल रहे हैं या इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? झटका देता है, झटका मिलता है, कंपन होता है, फिर क्या होता है? चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस से जब टकराते हैं तो शॉक कर देते हैं। फिर क्या होता है? यूं कैसे? ट्रांसफर होती है शक्ति। हाँ, शक्ति का संचार होता है। फिर क्या होता है?
लाइट चल जाती है। नहीं मतलब उसके हिसाब से हम अलग अलग तरीके से उसको यूज कर सकते हैं उस एनर्जी को। पहले अपनी लाइट चालू करो। और कोई? हाँ, थर्मल पावर स्टेशन से थर्मल पावर स्टेशन आया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। यस। और जो जब पानी नीचे की तरफ गिरता है, गिराओ पानी गिराओ, और जो वो फोर्स जनरेट करता है, फिर ट्रांसमीटर के माध्यम से वायर के मतलब एसी डीसी करंट होता है उस प्रकार से। ओके, इलेक्ट्रॉन तो थर्मल पावर कैसे चलता है? स्टीम बना, स्टीम से टरबाइन कैसे घूमता है? तो ब्लेड्स कैसे घूमती हैं फिर? क्या प्रभु, वो स्टीम बात लेना छोड़ो, वो पहले बताओ कि भाई वो कैसे रन होता है। मन उसको जलाता है, उससे पानी से स्टीम को नॉर्मल से पास करके टरबाइन को रन करते हैं, टरबाइन घूमता है, उससे जनरेटर अटैच होता है। तो आपको क्या लगता है मेरा प्रश्न क्या था? अभी जो मतलब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो रही है, तो एनर्जी कभी मतलब थर्मोडायनामिक्स का सेकंड या थर्ड लॉ, की एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट बी। हुई लाइट चालू? अभी तक नहीं हुई बराबर। चलिए भद्र जगन्नाथ जी बताइए, क्या बता रहे थे? भद्र जगन्नाथ जी आप है क्या? ज्यादा विद्युत बार से कम विद्युत बार की तरफ गौर करना चाहिए कि जहाँ पे एनर्जी नहीं वहाँ पे वो एनर्जी प्रवाह होती है। जैसे मान लीजिए फैन है तो उसमें चालू करेंगे तो वो जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फैन की वजह जोड़ेगी, ना कि वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। फैन में कम विद्युत बार, तो इससे हमको क्या फायदा? इससे हमने मतलब स्विच ऑन की तो इलेक्ट्रिक पास ऑन हुई, मतलब कहीं से पावर स्टेशन से पास ऑन हुई तो मेन जो सोर्स है वहाँ से कहीं से पास ऑन होती, मेन कोई बना ही नहीं सकता, तो कहीं से भी पास ऑन होती मेन सोर्स। तो वो कहाँ रखा है आपने सोर्स? वो जो प्रोविजन बोला कि पावर स्टेशन है, पावर स्टेशन से पास ऑन होती है। अभी तक गाड़ी स्टेशन पे नहीं आई। देखिए, वास्तविकता में विद्युत उत्पन्न करने में प्रकृति के जितने भी पंच तत्व है उसमें से कौन से मुख्य तत्व से विद्युत उत्पन्न होती है? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, हवा, पवन चक्की, वन वे। यस। और फिर आपने पानी बोला, तो पानी किसने बनाया? हवा किसने बनाया? भूमिलो अपन वायु खम बुद्धि रे मने वचा 8.5 भगवत गीता। तो भगवान क्या बता रहे हैं? मेरी शक्ति है। तो अल्टीमेटली वास्तविकता में विद्युत का विज्ञान क्या है कि जो पंच तत्व से चलती है, पृथ्वी के जो 5 तत्व है, यस, 5 एलिमेंट्स, उससे भौतिक तत्वों से चलती है। यस। तो वास्तविकता में विद्युत का विज्ञान क्या है कि वो कृष्ण की शक्ति से चलती है। कहाँ ये डीसी बीसी करने लगे? यस। तो अभी जली बत्ती न, तो भाव क्या है कि कृष्णा की शक्ति है। तो ये क्या विद्युत का विज्ञान है? समझ रहे हो कि नहीं?
ही तो समझना है कि ऑल बिलोंग्स टू कृष्णा। ये सब भगवान की शक्ति का रूपांतरण है। तो हुआ ना आपको कृष्ण स्मरण। यही तो उत्तम अधिकारी का क्या है, विजन है। यही तो शास्त्र चक्षु है। भक्ति शास्त्री करके क्या करना है, दीवार भरना है डिग्री से नहीं। आंखें पे क्या लगा है, कब हम देख नहीं पाते, आंखों में क्या लगा होता है तो हम देख नहीं पाते। वो तो अंदर है, हृदय पे लगी। वो गुजराती में क्या बोलते हैं, आंजनी आंख आई, क्या बोलते उसको, कैटरेट। हाँ, आंख सूज जाती है ना तो हम देख नहीं पाते ना। तो अभी क्या है कि भव रोग से, भौतिक चेतना से क्या है, हम शास्त्र चक्षु से देख नहीं पाते। समझ रहे हैं आप? तो वास्तविकता में शास्त्र चक्षु का विकास करके, किसका, शास्त्र चक्षु का विकास करके हमें क्या है, साक्षात्कार प्राप्त करना है। कि देखिए कैसे कृष्णा की शक्ति से सब कुछ चल रहा है। फिर आप हर जगह कृष्णा की अनुभूति करेंगे और हम कृष्ण भावना भावित बन पाएंगे। फिर खाली हमें विग्रह देख के भगवान का स्मरण नहीं होगा, पर हर जगह हर शक्ति, क्योंकि भगवान की शक्ति ही है, इससे क्या होगा, हम कृष्ण स्मरण कर पाएंगे। समझ रहे हैं? ये लक्ष्य है या? ऐसे भी समझा सकते हैं कि आपको क्या लगता है ये लाइट का शक्ति कहां से आता है, कोई ना माने तो अलग अलग दृष्टिकोण से, कि भगवान है और सारी कुछ भगवान की शक्ति से चलती है। तो आपको क्या लगता है, हवा किसने बनाया, पानी किसने बनाया, या समझे? पहले समझाना पड़ता है, डायरेक्टली कंक्लूजन पर नहीं आ सकते, समझ के। ओके, लास्ट पैरा। दिस Krishna consciousness movement offer a spiritual community that can bring about a peaceful condition in the world. Every intelligent man should purify his consciousness and rid himself above mentioned 6 hindrances to devotional service by taking wholehearted shelter of this Krishna consciousness. Very powerful statement. Yeah. बोल रहे हैं कि ये जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है वो संसार को क्या प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है, क्या बोलिए, कौन बोलेगा? यस, क्या ऑफर करता है? स्पिरिचुअल कम्युनिटी। स्पिरिचुअल कम्युनिटी यानी कि एक आध्यात्मिक समाज। यस, जिससे अपेक्षा की जाती है क्या, कि वो समाज में क्या करे, इस्कॉन के भक्तों से आशा की जाती है, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि वो समाज में क्या करे, शांतिपूर्ण वातावरण लाने में एक सहायक बने। तो सबसे पहले इंश्योर करना पड़ेगा कि हमारे समाज में शांति है क्या, हमारे कृष्णा कॉन्शियस कम्युनिटी में, स्पिरिचुअल कम्युनिटी में शांति है क्या, ये वाला वातावरण है जो बताया गया है। उसके बाद हम क्या कर पाएंगे, दूसरों को दे पाएंगे। यस, कितना बड़ा हमारा कर्तव्य बताया श्रील प्रभुपाद ने।
एवरी इंटेलिजेंट मैन शुड प्योरीफाई हिज कॉन्शियसनेस। यस, और सभी जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसको क्या करना चाहिए? जो 6 प्रकार की बाधाएं हैं, क्या 6 प्रकार की बाधाएं हैं, वो सबसे क्या करना है? अपने आप को मुक्त, जीवन जी, अपने आप को क्या करना है? मुक्त करना है। तभी क्या होगा? हम हृदय से, हृदय पूर्वक, भाव पूर्वक हम क्या कर पाएंगे? ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन की शरण को ग्रहण कर पाएंगे, ताकि हमारे जीवन से माया नाम का ग्रहण हट जाएगा। यस, तो कृष्ण भावनामृत आंदोलन की शरण को ग्रहण करना यानी कि जितने भी विचार है उसको आत्मसात करना और अपने जीवन में उतारना 100%। नो, समझ रहे हैं? ये अपेक्षा है। क्या? होल हार्टेडली। क्या बताया गया? होल हार्टेडली। अभी होल हार्टेडली क्या नहीं होता है? देखिए, यस, ये क्या है? ये उच्चतम आदर्श सिद्धांत है जो बताए गए हमें कि ये स्तर पर पहुंचना है। यस, इधर 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 क्या है? इधर कृष्णा है, इधर कृष्णा प्राप्त होंगे। यस, और इधर अभी हम ये स्तर पर है। जाना कहाँ है? ये स्तर पर जाना है ना? नहीं, जैसे क्या है, ये उच्चतम सिद्धांत है भक्ति के, ये हमारा स्तर है। देखिए इधर, समझ में आया? तो क्या करना है? कृष्ण भावनामृत आंदोलन की शरण ग्रहण करने का क्या अर्थ बताया? क्या करना है? क्या करना है? ऊपर आना है ना? हाँ, यस। और क्या हो सकता है? एक ये हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है? हाँ, हो गया ना? समझ रहे हैं? एक होता है कि हमारे स्तर पर ही सिद्धांत ला दो, समझे आप? उसको जस्टिफिकेशन बोलते हैं। अरे पर हम तो करते हैं, ठीक है, हमसे यही हो पाएगा, या हमसे इतना ही हो पाएगा। कॉम्प्रोमाइज स्टैंडर्ड, समझ रहे हैं आप? क्या कॉम्प्रोमाइज स्टैंडर्ड? पर इधर क्या बताया गया? नो कॉम्प्रोमाइज, होल हार्टेडली और टू टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट। मीन्स जितने भी भक्ति के सिद्धांत है, जो भी प्रचार में सहायता है, सादा जीवन उच्च विचार में जो भी सहायक है, मतलब हमें अपने जीवन को इस तरीके से मॉडिफाई करनी पड़ेगी, इस तरीके से बदलनी पड़ेगी, ताकि हम वास्तविकता में कृष्ण भावना का क्या कर सके? शरण ग्रहण कर सके। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या रियली? यस, क्योंकि वास्तविकता में यदि लक्ष्य ये है कि कृष्ण भावना भावित बना जाए, हाँ, तो पूरा जीवन काम करते रहना या अपने भौतिक संपत्ति के बारे में सोचना या परिवार के बारे में सोचते रहना कितना हितावह है।
यस, क्या लगता है? इसीलिए गृहस्थ आश्रम में क्या है? वानप्रस्थ है। क्या है? वानप्रस्थ है। और फिर ब्रह्मचारी जीवन में संन्यास है। वो दोनों एक ही बात है। पर कहने का अर्थ है कि ग्रेजुअली गृहस्थ जीवन के बाद क्या है? वानप्रस्थ है। कि व्यक्ति क्या करे? जैसे आप देखिए, शिल प्रभुपाद के समय पे आप सबने सुना ही होगा कि सारे लोग वास्तविकता में कोई जॉब नहीं करता। इवन जो गृहस्थ भी होते थे वो क्या होते थे? फुल टाइम हुआ करते। समझ रहे? तो वास्तविकता में हम कोई भी आश्रम में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर यदि हम होल हार्टेडली कृष्णा कॉन्शियस बनना चाहते हैं तो फिर ये सारे सिद्धांतों को स्वीकार करना पड़ेगा कि हम अपने आप को 24 घंटा 7 दिन और 365 24 घंटा पूरा हफ्ता, यस, और 365 दिन कैसे अपने आप को कृष्ण भावना भावित बनाए। ये वास्तविकता में क्या है? लक्ष्य है। बाकी सब क्या है? कॉम्प्रोमाइज्ड फिलोसॉफी। समझ रहे हैं? जो शिल प्रभुपाद बता रहे वही बता रहे कि एक स्तर के बाद तो हमें पूरा कृष्ण भावना भावित बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें इसकी ओर जाना पड़ेगा कि चलो हम पूरा दिन कृष्ण स्मरण और कृष्ण सेवा में लग पाए। और जो शिल प्रभुपाद बता रहे अपने भक्ति वेदांत तात्पर्य में, वो इच्छा के अनुसार हम अपना जीवन व्यतीत कर पाए, है ना। इसीलिए बहुत सारे भक्त वृंदावन चले जाते हैं, मायापुर चले जाते हैं, अलग अलग धाम में भी निवास करते हैं। तो ये एक अच्छी बात है। पर और भी क्या रिकमेंडेशन है कि भाई आप अपने स्थान पर ही रहो, नजदीक जहाँ पे भी हो, और वहाँ क्या करना है? पूरा जीवन प्रचार प्रसार करना है। समझ रहे हैं आप? तो कहने का अर्थ है कि भाई ये कृष्ण भावनामृत का उच्चतम सिद्धांत है कि हम 24/7 डायरेक्ट कृष्णा की सेवा में लगे, डायरेक्ट कृष्णा की सेवा में लगे। समझ रहे हो? ये उच्चतम सिद्धांत है, उसको बोलते हैं सादा जीवन और उच्च विचार। ओके, तो इसके ऊपर कोई प्रश्न, टीका टिप्पणी, दूसरे श्लोक में कुछ ना समझ में आया तो, ताकि फिर हम क्या कर सके, तीसरे श्लोक के ऊपर प्रयाण कर सके। हाँ, जो प्रयास के बारे में थोड़ा अच्छे से समझ और क्या क्या जैसे हम देखते हैं कि कोई स्टोर करना, तो अभी देखा जाता है कि जैसे पानी भी लोग स्टोर करते हैं। तो अल्टीमेटली ये देखा जाए तो उससे फेमस बेनिफिट भी फेमस स्टोर। तो अभी ये जो कंटेंट्स बात हो रही है वो इमोशनल लाइफ में, तो उसमें कैसे समझे इमोशनल लाइफ में अच्छे प्रयास को। ये भक्तिमय जीवन के बारे में भी बात हो रही है और सामान्य जीवन के बारे में भी बात हो रही है। समझ रहे हैं? पानी का संग्रह अच्छी बात है ना, दिक्कत क्या है? पर पूरे नदी का पानी संग्रह कर लेना ये कहाँ का समझदारी है? ये पूरे कुएं का पानी ले लेना ये कहाँ का समझदारी है? समझ पा रहे हैं? आप संग्रह कर सकते हो पर सबको दो जो उसके अधिकारी है। समझ रहे हैं? जरूरत से ज्यादा संग्रह करने के लिए मना किया गया। जरूरत हो इतना संग्रह कर सकते हैं। समझ रहे हैं?
और रही बात प्रयास की, तो जितना जरूरत है उससे ज्यादा यदि हम प्रयास करते हैं तो उसको प्रयास बोलते हैं। ओके, चलिए, हरे कृष्णा।